Namaskar. Welcome to Classroom of Bharat. Welcome to the very first video of this channel as well as this series. Uh, Class 8, our past 3, and this is the first book of the two books that we have in class 8. So इस चैनल में प्लान यही रहेगा कि 6 to 12 से लेकर जितनी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है लाइक पॉलिटी जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सो उन सारे सब्जेक्ट्स को उन सारी बुक्स को लाइक बी इट सीबीएसई और मे बी इन फ्यूचर एक बार सीबीएसई हो जाए देन स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स की we'll be doing one shot videos line by line we'll study and try to analyze and understand what is actually given um, in the academics wise and also try to solve the questions and write the answers so यही मोटिव रहेगा इस चैनल का तो बिना कुछ देरी के लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ओके सो दिस इज द अपडेटेड वर्जन मैंने इसके पहले लाइक काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हुआ करते थे इस बुक में बट नाउ रिसेंटली आफ्टर द पैंडेमिक चैप्टर्स थोड़े से इन्होंने रैशनलाइज कर दिया तो वही बताया तो ओके सो ये जो है क्लास 8th की हिस्ट्री सो दिस इज इन टू पार्ट सो द फर्स्ट पार्ट मेनली डील्स विद द मॉडर्न हिस्ट्री सो इसके अंदर भी टोटल 8 चैप्टर्स है पहले 10 चैप्टर्स हुआ करते थे एंड सेकंड उसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है सो एनसीईआरटी ने लाइक इफ यू विल सी द क्लास 6 की it mainly covers with the ancient history then class 7 deals with the medieval history then we have the class 8th which deals with the modern Indian history and class 9th deals with the world history so सबसे इंटरेस्टिंग तो वैसे सारे ही है बट हाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये पता पड़ जाएगा अपन को वील बी डूइंग 8 वीडियोस इन दिस सीरीज सो एक चैप्टर में एक एक लाइन बाय लाइन वील स्टडी ऑल दैट थिंग्स काफ़ी अच्छी पिक्चर्स निकाली गई है सो you will get to understand what is all this Britishers and this is the British resident and he's the Nawab of Pune and treaty कर रहे हैं resident everything पता पड़ेगा it's काफी interesting है ये history so without any much of the time waste let's start with the chapter first so it's a pretty you can say a very basic chapter what is history and how is like what are the sources are there how do we classify the history किस तरीके से अपन को historians ने बताया हुआ है what actually history refers to like if I'm saying history so what actually history means so ये वाले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में clearly डेप्थ में बताया so I'll request if you have your NCRTs so we can study line by line and if you have any doubts or any questions so what you can do is like again I'll be taking each and every thing line by line so kuch bhi agar hai issue you can go back and then check again and or if you have any doubt you can pin the time and you can ask me in the comment section and if you have any like अगर बीच में कभी लग रहा है ज़्यादा हो रहा है कुछ you can just take a break you can just pause the very video and come back after some time so let's start with this introduction how when and where चलिए how important are the dates there was a time when the historians were fascinated with the dates they were heated there were heated debates about the dates on which rulers were crowned or the battles were fought ठीक है in the common sense notion history was synonymous with dates you may heard people say I find history boring because it is all about memorizing the dates is such a conception true definitely yes क्योंकि like अपने स्कूल लाइक व्हेन आई वाज बैक इन माय स्कूल डेज बहुत ज़्यादा फोकस वाज इनटू
rote learning, like memorizing the dates, like first battle of Panipat, or maybe you can say death of Aurangzeb, or maybe Mughals ka Kal or Delhi Sultanate. Like it's very tedious to remember all the dates. But history is not actually kind of the thing. If you'll just timeline, if you'll just you can just memorize, or maybe you can just understanding the timeline will give you very better conception. एंड वही टाइमलाइन ऐसे मेरे बोलने से नहीं आएगी. इट इज लाइक व्हेन यू विल स्टडी एक्चुअली में उस जमाने में क्या हुआ था. इफ यू विल गो बैक देन यू विल एक्चुअली वो रटने की जरूरत ही नहीं आएगी. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. हिस्ट्री certainly about changes that occur over time. हाँ, सी मतलब कभी भी एक इंस्टेंस, कोई वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट होता है. लाइक if you can say 1757, it was the battle of Plassey. So इस डेट से या इस it was in the month of June, so you can say like from this day, uh, or it was 23rd of June, I can, if I'm not wrong, 23rd of June. So अपन अगर ये हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम, ये स्टेटमेंट का यही मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट एक डेट होती है, उससे काफी हमारा सोसाइटल या ओवरऑल जियो पॉलिटिकल या काफी बड़े एरिया पे इट टेक्स अ टोल ऑन दैट. सो इसीलिए चेंज होता है, इसीलिए वो डेट स्पेसिफिकली काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है. जस्ट रब दैट. ठीक है, ओके. It is about finding out how things were in the past and how things have been changed. बिल्कुल हमको ये पता रहना चाहिए किस तरीके से पहले चीजें थी and किस तरीके से change हुई. This is all about history. As soon as we compare the past with the present, we refer to the time we talk of before and after. बिल्कुल अपन ऐसे ही बोलते हैं कि लाइक आज इफ आई आस्क एंड से इफ आई से टू यू कि 15th of August 1947 क्यों इतना सिग्निफिकेंट डेट थी, क्योंकि उस टाइम को वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. तो आज के कंटेक्स्ट में वो बिफोर हो गया है, और आज से अगर कुछ आगे होता है तो हम उसको उस तरीके से डील करेंगे. लाइक इन फ्यूचर पीपल आर सेइंग कि हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए पीपल आर सेइंग कि हमको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसे जो भी पोल्यूशन है हमको उसको 2050 तक कम करना है. तो लाइक आज की हम रेफरेंस डेट मान रहे हैं, तो आज से पहले या आज से, तो हिस्ट्री जो है इट मतलब प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में ही हमेशा अपन उसको लुक थ्रू करते हैं. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted, and as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that are actually historical. इसका यही, ये पहले पैराग्राफ का यही बेसिक में मतलब है कि लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट नो. हाँ, हम लाइक हमको देख के पता नहीं पड़ता कि हिस्टोरिक मतलब पहले पास्ट में क्या हुआ था. अगर आप आज की डेट में भी अगर आसपास के एनवायरनमेंट में अपने इफ देखोगे, जो भी है अगर आज है, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है वो पास्ट से अफेक्ट हुई होगी. एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊंगा, इन आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा. जमींदारी सिस्टम. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. सो इसके पहले तक जो है जो लैंड अपने इंडिया के अंदर हुआ करता था, सो इट वाज मोर और लेस हेल्ड विद द किंग. बट अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, ब्रिटिशर्स के आने के बाद लैंड को प्राइवेटाइज कर दिया था उन्होंने. तो अगर आप देखोगे जहां आप रहते हो, लाइक मे बी अ फ्लैट और मे बी अ बंगलो और एनी ऑफ द प्लॉट या
जमीन का अगर टुकड़ा अगर आपके पास है, वो आप देखोगे एज अ कमोडिटी उसको ट्रीट किया जा सकता है, लाइक उसको ट्रेड किया जा सकता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दिस इज द सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड। तो ये ऐसा 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 होके लाइक अलग अलग होके जा सकता है, बट आप तो रह रहे हो यहाँ पे सेम उसमें, बट ये प्लेस पहले किसी और के पास थी, फिर किसी और के पहले थी, ऐसे। तो वही यही चीज ये बता रहा है कि मतलब ये सारी अगर एक चीज को अपन देख के उसका बता सकते हैं कि लाइक किस तरीके से चीजें आई हुई है, और इट इज दैट हिस्ट्री ओनली दैट टीचेस अस कि किस तरीके से चीजें हुई है। तो आई होप प्रीवियस सिक्स एंड सेवेंथ की क्लासेस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में अपन ने एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ा है, मेडिवल भी पढ़ा है, बट लेट्स कीप दैट असाइड, लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट चैप्टर ओनली। सो मेनली दिस चैप्टर इज डीलिंग विथ किस तरीके से अपन को हिस्ट्री को अपन क्लासिफाई करते हैं। We take things for granted as if we see has always been in our habit, but most of the moments whether we ask questions that are actually historical. ठीक है, watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Definitely, बिल्कुल आप कितने किस हद तक आप पीछे जा सकते हो, any of the thing. This is a very good example that we have taken. Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were the railways built and how did the people travel distances? I'm sorry, how did the people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about the things before the newspaper began to be printed. Definitely, तो ये सारी चीजें तो है like काफी अपन को पता ही नहीं पड़ता किस तरीके से. Another good example if I can think right now is of the वीडियो कॉल, VCs जिसको अपन बोलते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और मे बी योर व्हाट्सएप वीडियो कॉल. सो इट इज सो मच कन्वीनियंट नाउ डेज कि अपन को एक जस्ट कॉल लगता है. अदरवाइज लाइक 2008 और 2009 के टाइम पे स्काइप हुआ करता था, इफ यू कैन रिमेम्बर. इट टुक वेरी मतलब बहुत लैग होता था, और दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जो किसी ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस करा है. बट हाँ, अब नो वन नोज अबाउट स्काइप, एंड लाइक वेरी लेटेस्ट की न्यूज है दैट इट गॉट शट डाउन स्काइप. सो वही है कि मतलब सबका एक पास्ट होता है हर एक चीज का. इफ आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट लैंड, इट कुड बी योर जग, इट कुड बी लाइक जग की अगर मैं एक फॉर एग्जांपल बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से दैट यूज्ड टू हैपन, पॉटरी. तो history is like very interesting if you will see through the lenses from that. ठीक है, all such historical questions refer us back to the notion of the time. बिल्कुल, तो वही अगर आपको back to the notion of time में जाना है, a very good thing will be to go to a museum, है ना. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year of a month. हाँ, बिल्कुल हिस्ट्री को आप बिल्कुल एज अ उससे नहीं देख सकते कि बिल्कुल ये है एग्जैक्टली ये फिक्स्ड है तो यही फिक्स्ड है. ऐसा हिस्ट्री जनरली doesn't works like that. आपको जस्ट पता होना चाहिए कि like what actually happened during that phase, because उतना एज अ लाइक अपन को उस लाइक ओवरऑल अपन को उस एरिया उस टाइम पीरियड से वी गेट टू नो. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, दिस इज यू कैन से 2016 to 2019, this is 2020 to 2022, and this is 22 till 25. ठीक है, तो अगर if I'll say मोटा मोटी, अगर if I'll take any date from this, any date from this, any date from this, I'll get to know what was that. This is the like the pre-COVID phase. This one is the COVID-19. So if I'll say COVID-19, I'll get to know. If I'll say कि 19th of April, uh,
2020 को क्या हो रहा है, I can just have a rough idea of what was getting on. So it is not just about specific date wise, but it is about the timeline that मतलब history uh, tries to teach us. तो बस वही इस जगह पे लिखा हुआ है. I'm just trying to explain you that thing. तो सेम जैसे अभी के कंटेक्स्ट में, इट इज सेम इन द like history के context में. For example, if I'll say to you, like for example, if I'll remember for let's say 200 से लेकर 600 तक, I don't know, but if I'll be saying it was the age of Gupta Empire, ठीक है, तो it is like I'll agree to this, but does not have to be always precisely in terms of particular year of a month. You should be history को अपन उसी तरीके से देखते हैं. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates. वेरी गुड, वेरी गुड. और यही एक चीज है जो लाइक अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर दैट वाज द स्ट्रेस. इसीलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, आई हैव सीन इवन माय बैचमेट्स, मैंने देखा था, एंड इवन आई वाज इन दैट जोन कि मेरे को काफी पसंद नहीं होता था हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज उसको एज अ बर्डन देखा जाता है कि उसको डेट्स को रटना पड़ेगा. बट सी इन योर टेक्स्ट बुक ओनली दे आर मेंशनिंग दैट it is incorrect to fix precise dates to process that happened over a period of time. People in India did not begin drinking tea on one fine day. Good. They developed the taste over time. जी बिल्कुल. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix a single date on which British rule was established, or the national movement was started, or the changes took place within the economy or the society. वही एनसीईआरटी यही अपन से बोल रही है कि इस पूरे पैराग्राफ से इट वाज नॉट कि एक पर्टिकुलर डे or a date that defines history. It is like a certain time period, and over a period of time that धीरे धीरे ही changes आते हैं. Like they said कि about the process of tea, एक दिन में लोगों ने टी नहीं पी है, या ही नेशनल मूवमेंट एक दिन में नहीं स्टार्ट हुआ है. तो वो धीरे धीरे करके होता है, और हिस्ट्री को पूरे उस तरीके से देखना चाहिए. All these things happen over a stretch of time. बिल्कुल. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. बिल्कुल. Approximation ही उस तरीके से चीजें हुआ करती है. जैसे कि लाइक अभी भी बोलते हैं, लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के अंदर बताते हैं कि अपना देर इज कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट यू कैन ले, लाइक 2014 में elections took place and we had our honorable PM Narendra Modi as our PM. So this is a time period. So people say कि 2014 से currently we have मतलब उस like the history has been written in the context of our PM, because 2014 में he came to power. Before that मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर. सो इस तरीके से हिस्ट्री को अपन कुछ सर्टेन इवेंट्स में बांट सकते हैं. सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी बोला, यू कैन लाइक मैंने जब भी एग्जांपल इसके पहले दिया था 2019 20, तो आइदर यू कैन डू दिस और आइदर यू कैन डू 2014 से 2025. तो यू कैन टेक दिस ऑल एज द पीरियड ऑफ वन. व्हाई? बेस्ड ऑन दिस notion of the prime minister. So this is how we look at the things. If we'll say 100 years down the line, if एक एक दिन को अपन नहीं देख सकते, but हाँ उस अलग अलग बेसिस पे we can check that. We can only refer to a span of time, definitely an approximate period over which particular changes became visible, definitely. Okay. Why then do we continue to associate history with a string of dates? It's a very good question. So this association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events.
बिल्कुल. You can say it was around the 12th century. उसके पहले और उसके थोड़े से बाद में. It was about the rulers and their policies. बिल्कुल. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he was married, the year he had a child, the year he fought a particular way, the year he had died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates around the dates continue to be important. बिल्कुल. तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये यही बोल रहा है कि हिस्ट्री को जो है पहले भी और कुछ हद तक आज तक भी काफी चीजों के अंदर उसको डिस्क्राइब किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, कब उसको किसी को बच्चा हुआ, कब एक राजा की शादी हुई है, कब वो मरा है, ऐसा. तो फॉर इन दीज इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट अपने पास होती है. बट इफ आई आस्क यू व्हेन डिड द ब्रिटिश अराइव इन इंडिया, देयर इज नो, देयर इज ओके, देख उस चीज के लिए भी है कि लाइक दे अराइव्ड ऑन 1609, ठीक है. बट इफ आई से व्हेन डिड दे एक्चुअली एस्टैब्लिश द रूल इन इंडिया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डेट. Or if you'll say, when did the national movement began, there is no significant date. Or when did the decline of the Mughals happen, we don't have a significant date. But on these specific things we do have a significant date. इसीलिए ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. बट लाइक अगर हिस्ट्री को अगर देखना है तो एनसीईआरटी इज टेलिंग आपको इवेंट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रादर दैन दीज डेट्स, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज से उन चीजों को डॉक्यूमेंट किया जा चुका है. और वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक एज आई मेंशन यू द बैटल ऑफ प्लासे और मे बी द बैटल ऑफ बक्सर, काफी इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम रिलेटेड और अपने स्कूल रिलेटेड कुछ कुछ डेट्स है. इफ यू विल कीप दैट इन माइंड, दैट वुड बी एनफ. बट हाँ, देयर इज नो need and there is nothing to blindly remember all the dates and the events and everything. सो बस यही है, क्योंकि अदरवाइज अगर इस तरीके से आप हिस्ट्री को अप्रोच करने जाओगे, सो देयर इज नेवर एंडिंग इन दैट. देयर आर एन नंबर ऑफ डेट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ किंग्स. और ये तो सिर्फ दो ही चीज बोली, देन किसका कब क्या 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 हुआ. यू कांट लिटरली रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम 00 से 2025, एंड इवन फ्रॉम 00 से देयर इज 1000 or maybe 10,000 BC. ठीक है. Okay, let's continue. ठीक है. As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and the other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced, what they ate, how the cities developed, and how the markets came up, how the kingdoms were formed, and the new ideas spread, and how the society and the cultures changed. ठीक है. हाँ, ये class it is dealing mainly with ancient as well as medieval. So if you have not studied, or if you have no idea, like little idea, or maybe if you have forgot, like do keep a check on the channel. In future, as and when we'll complete this, I'll also cover all the chapters of these textbooks as well. So this is a good image. NCERT is trying to teach like advertisements किस तरीके से अपने टेस्ट को, और मे बी नॉट टेस्ट, अपने माइंड को कंडीशन करते हैं कि अपन को किस तरीके से करना है. लेकिन लिप्टन टी, सो आज भी लिप्टन चलती है, उस जमाने से चलती आ रही है. सो व्हाट दे हैव डन की इस तरीके से है कि लाइक दिस इज एन British army personnel he's riding and all that. So they are trying to create an image like कि it is the army. So armies prestige के उससे देखते हैं उसको. So अगर ये if this guy is drinking, so it is like काफी better रहेगी. हाँ, created new taste and new popularized, like
no, if a like Indian would have been there, he don't know how taste of what the tea tastes. So how can you उसको किस तरीके से आप बोलोगे कि आप इस चीज को खरीदो? So army, respect, रॉयल्टी, है ना? सो इस तरीके से बताया गया था. सो ठीक है. Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. बिल्कुल. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If we focus, if our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. बिल्कुल. ये मैं इस चीज पे मैंने ऑलरेडी इसको ऊपर डिटेल में बता रखा है, और इन फ्यूचर भी लाइक अपने आने वाले चैप्टर्स में अगर डील करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा. देयर इज नो सर्टेन डेट दैट इज बोले कि ये इस तरीके से आज से हिस्ट्री चेंज हो गई. इट इज लाइक द लेंस वी सी. आई टोल्ड यू अबाउट द कोविड एंड द 2014 से 2025 वाला. सो इट इज द क्राइटेरिया दैट डिफाइंस what what are we looking for. The dates we select, the dates around which we compose the history of the past. So if I'll say example, let's say 18 not 18, let's say 1700 से लेके 1900. ठीक है. अब लाइक ये इट इज अ वेरी बिग यू कैन से रेफरेंस टाइम पिंग. इसके अंदर इंडिया की भी आएगी. यू कैन से इस टाइम पे अमेरिका का भी रहेगा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे. You can say the UK and the France are also in the fight. So it is a very broad kind of reference date. So it is, हमको क्या चाहिए उस तरीके से हम देखेंगे. So we are dealing with the Indian history right now. So अपन उस जगह पे फोकस करेंगे. ठीक है. इफ आर फोकस ऑफ द स्टडी, हाँ बिल्कुल फोकस वो होना चाहिए. तो हमारा फोकस अभी इंडियन हिस्ट्री को डील करना है, और वो भी मेनली मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में भी अपन क्या डील कर रहे हैं? ब्रिटिश. हाउ डिड दे came and what was their rule exactly and how did they actually came, किस तरीके से चीजें हुई उस तरीके से. ठीक है. कंसिडर एन एग्जांपल. इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया. हाँ, काफी हद तक जो अपनी हिस्ट्री है वो इन्हीं लोगों ने लिखी थी ड्यूरिंग द लाइक द ब्रिटिश रूल. द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इट इज लाइक इफ यू गवर्नर जनरल को अगर इस तरीके से मैं करूं आज के पीएम के समान, यू कैन जस्ट से ही इज द हेड ऑफ दिस स्टेट. ठीक है. These histories began with the rule of the first Governor General Warren Hastings. ठीक है. And ended with the last Viceroy Mountbatten. So अगर फिर वही है, इन दोनों टर्म्स के भी मतलब है over the period of time. I'll tell you in detail what is the Governor General and what is a Viceroy. But हाँ, he was the very first and Lord Mountbatten was the very last. So if I'll say Hastings was in 1773 and Mountbatten was in 1947. So इतना रूल लगभग ब्रिटिशर्स का रहा है. और भी बहुत सारे हैं अपने पास लाइक हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग. इंपॉर्टेंट वंस यही थे. जॉन लॉरेंस, लिटन, राइपॉन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन. It was a seemingly never-ending succession of the governor generals and the viceroys. Over the period of time इस चीज का भी डिफरेंस अपन को पता पड़ जाएगा. बट हाँ, जिस तरीके से चीजें हैं, इट इज लाइक अगर यहाँ पे भी इफ यू हैव स्टक टिल हियर, प्लीज ट्रस्ट मी, हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये अपनी तीनों एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. सो प्लीज वो डर हटा देना कि अगर थोड़ा सा भी है कि नहीं यार नहीं, और एक एक लाइन बाय लाइन अपन चल रहे हैं. बहुत इजी है, एंड इन फ्यूचर भी अगर आप करोगे पता होना चाहिए अपने. पर्सनली अगर मैं एडवाइस करूं तो अपने हिस्ट्री के बारे में. All the dates in these history books were linked to the
like to these personalities, to their activities, बिल्कुल क्या क्या काम इन्होंने किया था, policies and achievements. If there was nothing outside their lives that was important us to know, it was as if there was nothing outside, बिल्कुल. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of the British India. तो वही ये पैराग्राफ यही बोल रहा है कि ये जो गवर्नर जनरल्स थे, इन लोगों के डिसीजंस एंड ऑल दीज पॉलिसीज के कारण ही अपनी हिस्ट्री राइट हो रही है. ठीक है. Okay. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and the classes in the Indian society within the format of this history of गवर्नर जनरल्स? तो ये जो है ना दो सेंटेंस, इट इज ऑन अ क्वेश्चन फॉर्मेट के टोन पे. कैन वी नॉट राइट ऑन द इन अ डिफरेंट वे? जी हाँ, बिल्कुल. जैसे ऊपर वाले स्टैंसा में ही उन्होंने ये बताया था कि जो है इट वॉज रिटन बाय द ब्रिटिशर्स. यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे ब्रिटिश हिस्टोरियंस. ठीक है. तो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट वे? एक बहुत अच्छा एग्जांपल इफ आई से, जैसे कि जो अपने जो फ्रीडम फाइटर्स है, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, इनको जो है दीज ऑल ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टर्म एज टेररिस्ट. And what we used to call them, and actually they were the freedom fighters. ठीक है. सो इस चीज से मैं बस यही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था. कैन वी नॉट राइट द हिस्ट्री ऑफ इन अ डिफरेंट वे? सेम एक चीज है, सेम भगत सिंह जी को एक लेंस से कोई टेररिस्ट बोल रहा है, एक तरीके से कोई और बोल रहा है. तो मोस्टली जो अभी तक की अपनी हिस्ट्री है वो इस ब्रिटिशर्स ने लिखी है. तो आने वाले टाइम पे भी आई टेल यू, इन सबके नाम के आगे सर या लॉर्ड लिखा रहता है. तो वही है कि हिस्ट्री जो है ब्रिटिशर्स ने लिख रखी है, इसीलिए हम उस तरीके से. बट कैन बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस भी है, लाइक रामचंद्र गुहा एंड मेनी मोर, बिपिन चंद्र. सो इंडियन हिस्टोरियंस भी है, और वही है कि हिस्ट्री को जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेंस से देखा जाता है या पढ़ा जाता है. अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती है. आई राइट दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन. तो वही है, डिफरेंट वेज से आपकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आ जाएगी. कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है. तो वही है. तो हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज, किस तरीके से अपन कर सकते हैं, तो वही सारी चीजें बताई है. When we write history or a story, we divide it into the chapters. बिल्कुल chapters में अपन बांटते क्यों? क्योंकि easy रहे. Why do we do this? It is to give the chapter some coherence. Coherence यानी कि उसको connection दे अपन. Coherence. So I'll write this here as connection. बिल्कुल. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. जी बिल्कुल. अगर सब उल्टा पुल्टा रहेगा तो आपको भी कुछ चीज मजा नहीं आएगी. लाइक अगर मैं अभी जैसे ये पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, अगर वी आर स्टडिंग और सडनली इफ आई टेक मैथ्स की कोई प्रॉब्लम जस्ट वेरी ऑन द नेक्स्ट पेज, अगर मैं ऐसे नीचे करूँ और मैथ्स का कोई सवाल आ जाए तो नहीं हो पाएगा ना. तो वही ये चीज लाइन समझा रही है. In the process, we focus on only those events that helps us to give shape to the story we are telling. बिल्कुल. In the histories that revolve around the life of the British Governor Generals, the activities of the Indians simply do not fit as they have no space. क्यों space नहीं है? क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने लिखी है. अगर वो अपनी हिस्ट्री लिख रहे तो वो अपने को बड़ा चढ़ा के बोल रहे, तो वो इंडियंस को वैसे भी उतनी अच्छी नजरों से नहीं देखा करते थे, इसीलिए स्पेस नहीं है. What then do we do? Clearly we need another format for our history. बिल्कुल. This would mean that the old dates will no longer have the significance they had earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. बिल्कुल. जैसे कि
यही मैंने बताया, इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर कोई और किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से आप चीज देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये जैसे फोटो दे रखी है, दिस इज ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इफ आई सब लोग को अगर मैं इफ आई से कौन क्या क्या देख रहा है, फॉर एग्जांपल कोई दिस दिस इसको देख लेगा, कोई ये इसको फेदर को देख लेगा, कोई ये कर्टेन्स को देख लेगा, यहाँ देखो कोई इसके बाल देख लेगा, कोई इसका ये देख लेगा, कोई ये देख लेगा, कोई यानी कुछ भी कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी चीजें होती है, तो बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाउ डू वी पीरियोडाइज। पीरियोडाइज का मतलब है डेट्स के रिगार्डिंग में ये बोल रहा है कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अभी नीचे भी आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। ठीक है, मतलब इफ यू विल वॉच द कंप्लीट लेक्चर्स ना, तो यू विल गेट अ कनेक्शन, क्योंकि जो चीज आगे आने वाली है मैं उसको पहले से ही थोड़ा सा ब्रीफ में आई एम टेलिंग यू, सो वो जब व्हेन दैट पैराग्राफ कम्स ना, तो लिंक बैठ जाता है। तो ये किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहे हैं अपन एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, तो वही है कि क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर रखी है कि अगर एंशंट तक में इट वाज लाइक रूल ऑफ द हिंदू रूलर्स, गुप्ता एम्पायर। मिडीवल के मोस्टली लाइक द अरब, टर्किश, और मे बी यू कैन से द मुस्लिम रूल वाज डोमिनेंट। द मॉडर्न के अंदर द ब्रिटिशर्स वर डोमिनेंट। तो इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई करा। इसको कई अलग तरीके से भी इसको क्लासिफाई करा जा सकता है, विच काफी हिस्टोरियंस ने कर रखा है, बट हाँ इंडिया में काफी एक्सेप्टेबल हिस्ट्री को क्लासिफाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो ईजी एज वेल, और वो फिट भी बैठता है। ठीक है, इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल philosopher, published a massive 3-volume book, A History of the British India. सोचिए, ये जो है 1817 में पब्लिश कर रहे हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जबकि और लेट्स से 150 साल रहेंगे, 1947 तक रहेंगे ये लोग। और अभी in this he divided the Indian history into through 3 periods, ठीक है, Hindu, Muslim and the British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at our Indian history? If I'll give you 10 seconds, जब तक मैं underline कर लेता हूँ, can you see a problem? Uh, I'll say yes. Why India is such a vast country? मैप बना के देखते हैं, है ना? Why we have to divide it into Indian, और एक तो Indian history है, हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश, व्हाई वी हैव टू क्लासिफाई इन दैट जोन? बहुत सारी चीज है। इफ यू विल से द नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे लोग इस चीज में तो फिट भी नहीं होते। वी हैव द लक्षद्वीप्स, वी हैव द अंडमन्स, वी हैव द तमिल्स। बहुत बड़ा है इंडिया, तो बहुत नैरो हो जाएगा ये इस तरीके से क्लासिफाई करने का। और इसीलिए इस तरीके से आज भी अगर आप देखो ना, न्यूज़पेपर्स में अगर आप पढ़ो, तो जो सदर्न स्टेट्स है दे आर प्रोटेस्टिंग ऑल्सो विद द हिस्ट्री का जो फॉर्मेटिंग है, और इस तरीके का जो वो है रिलीजन के बेस पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, तो दैट अंडरमाइंस द सदर्न कल्चर एंड ऑल दैट। वो पॉलिटिकल इशू है, और आज पेपर में भी उसके बारे में आता रहता है। चलिए, why do we try to and divide the history in the different periods? उसका आंसर ऊपर ही दे रखा है, उसको क्लासिफाई करने के लिए। We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद हो तो। Its central features as they appear to us. So the terms through which we periodicize, that is demarcate the difference between the period। बिल्कुल ऐसा अगर अगर पीरियड बना दे अपन, लेट्स से 10,000 से 1000, ये ऐसा, फिर उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी से लेट्स से
12 8th सेंचुरी 8 12th सेंचुरी से 16 से यू कैन से 1947 1947 से 2025, इस तरीके से दिस इज हाउ आई डिड। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग की है, बट किसी भी तरीके से आप इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई बोले तो हाँ, इससे मैं अगर हूं तो किसी को समझाने के लिए मैं समझा दूंगा। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, और यू कैन इवन डू लाइक योर थिंग एज वेल। ट्राई करना आपकी द डेट यू वर बॉर्न, डेट ऑफ बर्थ से लेके आज की डेट, प्रेजेंट डेट, नंबर ऑफ इयर्स, और उसको डिवाइड करना कि मेरा अर्ली ये था, लाइक स्टार्टिंग में मैं ये किंडरगार्टन में गया था, देन आई वेंट टू फर्स्ट क्लास से मे बी थर्ड क्लास तक इट वाज देन दिस एंड टुडे इज एट्थ, ऐसा करके इस तरीके से आप कर सकते हो। अपना फन फन एक्टिविटी रहेगी, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ हिस्टोरियन ऑफ योर सेल्फ, है ना? ठीक है। They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. ठीक है? Mill thought that all Asian societies uh, were at a lower level of civilization than the Europe. तो ये मिल साहब थे, जेम्स मिल, इनको लगता था अपने एशिया में, स्पेशली इंडिया और मे बी इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, ये सारे उतने कम हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इन इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोस रूल द कंट्री। इनको लगता था ब्रिटिशर्स के आने के पहले हिंदू और मुस्लिम्स जो है इंडिया पे रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, caste taboos and superstitious practices dominated in the social life. Religious intolerance मतलब, एक वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, if you can, जजिया, ये जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस का, इस इट इज अ गुड एग्जांपल। जजिया, जजिया का ये मतलब हुआ करता था कि जो उस समय के जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, वो हिंदू लोगों पे एज अ टैक्स कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, यू आर अ हिंदू, एंड जस्ट बिकॉज यू आर अ हिंदू आप पे रिलीजियस टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। तो उस तरीके से भी चीजें हुआ करती थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की। अगर आपका ये मजहब है या आपका ये रिलीजन है तो आपको उस तरीके से गलत नजरों से देखा जाएगा। कास्ट टैबूज जो आज की डेट में भी काफी होते हैं, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, अंधभक्ति, या मे बी काला जादू, तांत्रिक, बहुत सारी चीजें होती थी। सती की प्रैक्टिस हुआ करती थी। सती, अगर आपको नहीं पता, बहुत ही बुरी प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसके अंदर जो विडो वाइफ होती थी उनको उनके हस्बैंड के और डेड बॉडी के ऊपर उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो बहुत ही बुरी प्रैक्टिस हुआ करती थी, और उसको फिर बाद में डीक्रिमिनलाइज, उसको क्रिमिनलाइज करा गया था। सॉरी, नॉट डीक्रिमिनलाइज, इट वाज क्रिमिनलाइज्ड। ठीक है? उस समय इस तरीके से चीज हुआ करती थी। ब्रिटिश रूल मिलफेल्ट दैट कुड सिविलाइज इंडिया। ब्रिटिशर्स को लगता था कि हमको इंडिया को सिविलाइज करना है, वो ये बोल के रहते थे यहाँ पे। ठीक है, ये एक्टिविटी पे मैं थोड़ा बता देता हूँ मैं। इंटरव्यू योर मदर और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ। नाउ डिवाइड देयर लाइफ इनटू डिफरेंट पीरियड्स एंड लिस्ट आउट द सिग्निफिकेंट, जो कि अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। इफ यू आई हैव टोल्ड यू टू डू फॉर योरसेल्फ। ठीक है? और इवन इफ यू, अपने आप के बाद में भी फिर इनका भी कर देना, अपने पेरेंट्स का या कोई रिलेटिव्स का। ठीक है? टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। ओवर द आने वाले चैप्टर्स में अपन इस चीज को पढ़ेंगे। Mill in fact suggested
that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. देखो, for India was not capable of the progress without the British help. ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगता था, और इसी चीज के कारण तो वो लोग रूल करते थे. अगर कोई बोले कितना रूल करा है, 1757 से लेके 1947, इतने सालों तक उन्होंने राज किया है. किस बेसिस पे? यही तो बोलते थे कि हमको आपको एनलाइटमेंट देना है, हैप्पीनेस देनी है, और आप लोग जो है केपेबल नहीं हो विदाउट द ब्रिटिश हेल्प. तो वही आने वाले चैप्टर्स में वील स्टडी किस तरीके से उन्होंने इंडिया के ऊपर राज करा. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before the British rule was one of the darkness. Can such conception be accepted today? ठीक है, तो ये लोग जो बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स इस तरीके से, दिस इज अ थ्योरी. इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स के पहले जो है डार्कनेस हुआ करता था. इट वाज बहुत ही बुरी तरीके से लोग रह रहे हैं, जो कि अपन ने ऊपर यहाँ पे भी पढ़ा था. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट अब्यूज, सुपरसिशन, इस तरीके से. तो इट इज ऑल दीज ब्रिटिशर्स हु केम और इस डार्कनेस को हटाने का काम उन्होंने अपने सर पे ले लिया था. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, अगर लग रहा है आपको कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो प्लीज पॉज कर लेना उसी टाइम पे, उसके बाद आगे कर लेना, क्योंकि लाइन बाय लाइन भी आराम से ही जा रहे हैं अपन. कोई, आई एम नॉट टेकिंग इट वेरी फास्ट, और इफ यू वांट you can do at 1.5 or maybe 1.25. 1.25 may be better. ठीक है. In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of the faiths exist simultaneously in these periods? बिल्कुल. क्यों अपन को सिर्फ ये दो रिलीजन्स के बेसिस पे पूरी इतनी वास्ट इंडियन हिस्ट्री को करना है? बहुत सारे रिलीजन्स हुआ करते थे, ट्राइबल्स हुआ करते हैं, आज की डेट में भी होते हैं. Why should we characterize an age only through the religions of the rulers of the time? बिल्कुल, रूलर्स पे ही क्यों हमको करना है? To do so in the suggest the lives and practices of others do not really matter. We should also remember that even rulers in the ancient India did not share all the same faith. बिल्कुल. Moving away from the British classification, historians have usually divided the Indian history into ancient, medieval and modern, जो कि मैंने ऊपर ही बता के आ रहा हूं मैं. The division too has its problems. बिल्कुल. It has a periodization that is borrowed from the West, and where the modern period was associated with the growth of forces of modernity, science, reason, democracy, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. बिल्कुल. तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर अपन बोल रहे हैं तो ये सारी चीजें हो रही थी, बट अगर अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखें, 1757 से 1947 में बहुत ही कम बेसिस पे ये सब हुआ है. बिल्कुल ही नहीं. इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें तो नहीं थी. यहाँ मेनली यूरोप में अगर आप देखो और अमेरिका में. ठीक है. Medieval was the term used to describe a society where the features of the modern society did not exist. बिल्कुल. तो ये सारी चीजों के पहले तो इवन वहां ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर और इवन अमेरिका के अंदर भी सोसाइटी उतनी नहीं थी. अगर कोई बोले तो स्टार्ट कब से हुआ, इट वाज ओनली इन 1600 जब एक्चुअली में ब्रिटिशर्स और द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्रिएटेड, और यू कैन से 1500 में पोर्चुगीज केम. उसके पहले तक तो सेम ही था. नो वन न्यू कि किस तरीके से ब्रिटिश भी 100-200 साल बाद इंडिया को कॉन्कर करेंगे. तो इसके पहले मतलब मिडिवल वाले टाइम पे भी लगभग सब सेम हुआ करता है. कैन वी
critically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study. As you will see in the book, under the British rule, people did not have the equality or the freedom of the liberty. बिल्कुल यही फर्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से, अगर किसी को लग रहा है बोरिंग है, नहीं, ये बेस बना रहा है इस पूरे चैप्टर का, और आने वाला टाइम में मतलब समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री. बस बी विथ मी. नॉर वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस. बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे. इंडिया को अगर बोला जाए तो बिल्कुल बस लूट के, और जितना भी रिसोर्सेज है वो लूट के लेके चले गए. लूट, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उन्हीं का फायदा हुआ था. कोलोनियल, इस चीज को अपन कोलोनियल एरा भी बोलते हैं. ठीक है, कोलोनियल अगर बोले तो ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड है. ठीक है, वाई कोलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating the local nawabs and the rajas. ये सुना भी होगा, लाइक आपके मदर या फादर या रिलेटिव से भी कहीं सुना होगा कि फूट करो और राज डालो. तो वही हम अपने ही लोकल किंग्स को मैन्युपुलेट और ऐसे लड़ झगड़ के उन्होंने कब्जा किया था. और इस तरीके से आगे बहुत सारी बैटल्स है, वो पढ़ेंगे अपन. You will see how they established the control over the economy, society, and collected the revenue to meet all their expenses. पैसा कैसे उन्होंने कमाया, क्योंकि कोई भी अगर रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसको पैसे की जरूरत है. आप अपने घर में देख लो, लाइक आपके फादर है, आपकी मदर है, वो हेड ऑफ द फैमिली है. मनी, मनी अगर नहीं रहेगा तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ों को मैनेज करना. तो इन लोगों ने भी करा था मनी से रिलेटेड भी. बॉट द गुड्स, इकोनॉमिक भी, मतलब इसको खरीद बेचते थे, तो इकोनॉमिकली भी ये लोग साउंड थे. दे वांटेड एट लो प्राइसेस प्रोड्यूस क्रॉप्स, खेती भी करनी है आपको, मतलब सब चीज चलाने, जस्टिस भी करना है आपको, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है. आप खुद इमेजिन करो ना, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है. And you will also understand the changes that came about as a consequence. ठीक है, consequence क्या होगा इसका? एंगर, रेजिस्टेंस और फ्रीडम मूवमेंट. और इन्हीं से महात्मा गांधी, बोस, नेहरू और एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग. तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस था. तो ऑल दिस, इन्हीं सारी चीजों के कारण अपनी हिस्ट्री यू कैन से रीराइट हुए. ये फ्रीडम मूवमेंट की जन्म ही यही थी कि इतना ज्यादा लूट कर लिया था, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा था अपने इंडियंस को, ऐसा हुआ. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस द ब्रिटिश रूल ब्रॉट इन वैल्यूज, टेस्ट्स. ऊपर अपन ने देखा ना टी का एग्जाम्पल, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, ऐसा. तो बहुत तरीके से इंडिया को ब्रिटिश रूल ने चेंज करा है. वैल्यूज में अपना एटिकेट्स, मॉडर्न एटिकेट्स, स्पून देख लो, फोर्क देख लो, है ना, डाइनिंग से रिलेटेड, तो ये एटिकेट्स ही हो गए. इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो है कहां से आ गई? फिर आप कैश्यू देख लो, और पपाया देख लो. नॉट एक्चुअली ब्रिटिशर्स लाए थे, पोर्चुगीज लाए थे, बट स्टिल दूसरे यूरोपियन ही थे. तो जो काजू है, पपाया है, और इवन पोटैटो, आलू, ये भी बाहर से आया है. तो काफी चीजें जो कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस है, काफी चीजें इनके आने के बाद अपनी इंडियन सोसाइटी के अंदर चेंज हो गई. When the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social, and cultural changes, we refer to the process as colonization. Very important definition. अगर इसको हो सके तो you can remember this. ठीक है.
when the subjugation of one country by another, one country मतलब Britishers, leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process of colonization. मतलब आपकी पूरी ही चीजें ही बदल डाली, आपकी रीढ़ हड्डी ही बदल दी, आपको पूरी तरीके से चेंज कर दिया, तो उसको कॉलोनाइजेशन अपन टर्म करते हैं, ऐसा ये बुक बता रही है अपन को. You will, however, find that all classes and the groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called the Our Past in Plural. ठीक है, एक तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए पास्ट इन्होंने लिखा हुआ है. इट इज नॉट जस्ट एक ही चीज में हुआ है, पास्ट मतलब कि मोर देन वन. इंडिया को जो है काफी तरीके से चेंज हुआ है ब्रिटिशर्स के आने के बाद, इसीलिए इसको पास्ट टर्म करा गया है. ये लाइन ये बता रही है. हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the latest 250 years of Indian history? तो ये वही पैराग्राफ डील कर रहा है कि अपन को क्या 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 चीजें पता होती है या पता है हमको कि किस तरीके से ये चीज एक्चुअली में हुई है. तो अगर बता देखा अगर, तो मान लो ये 0 BC है. एक्चुअली में होता क्या है, दिस इज द टाइम लाइन. 0 को अपन, दिस इज द डेट लाइन. तो अपन तो जैसे कि अगर ये है, इसको इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट. तो अगर ये रोमन्स एंड इन द इंग्लिश के उस पे अपन डील करते, तो जैसे जैसे इसके पहले पुराना जाओगे तो पत्थर युग, स्टोन एज पड़ा होगा, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन था, अशोका था, देन बुद्ध जी थे, ऐसा. तो इसको बीसी बोलते हैं अपन, बिफोर क्राइस्ट. और इसको अपन एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी, या यू कैन से इसको आफ्टर क्राइस्ट भी इस तरीके से बोलते हैं, एडी. तो या बीसीई भी बोलते हैं अपन. तो अगर अपन 00 BC से जितने आगे जाते जाएंगे, तो अगर आज क्या चल रहा है, जैसे 1947 है, आज क्या है 2025. जितना अगर अपन इस नंबर लाइन पे आगे जाते जाते जाएंगे, अपन को सोर्सेज ज्यादा मिलेंगे. जितना अपन पीछे जाएंगे, हमको पुरानी चीजें के रिकॉर्ड्स कम मिलेंगे रादर देन दिस. तो 1600, 1700 ऐसे. तो इस तरीके से चीजें का डिफाइन करते हैं अपन. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि ऐसा. पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोसीजर रिकॉर्ड्स. तो हाँ बिल्कुल, इंग्लिश जो है, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, इनके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे. तो वो उस चीज को काफी एज अपने सोर्स ऑफ हिस्ट्री या सोर्स ऑफ प्रूफ हुआ करता था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कुछ. देखिए, ब्रिटिश इंडिया 1773 रिकॉर्ड्स. ठीक है, जस्ट रैंडम एक मैंने डेट डाली है. तो ये देखिए, है ना. तो हुआ है ये, देखिए जैसे कि ऐसा. ठीक है, और मे बी दिस जेम्स मिल. ठीक है, 1817 जैसे यहाँ लिखा है. अपन ने इनका नाम स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जेम्स मिल के बारे में, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल. और यू कैन से देखिए, ये भी 1600 से 1858 तक का है. तो काफी रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना. ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत ज्यादा इस चीज में अच्छे थे, हर चीज को डॉक्यूमेंट करते थे. तो अगर डॉक्यूमेंट रहेगा, पेपर रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, तो उस चीज से अपन को हिस्ट्री रीराइट करने में आसानी रहेगी. अब तो इंटरनेट आ गया है, क्लाउड स्टोरेज है, अब तो
उसको हर चीज को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, तो अब इट इज नॉट अ बिग इशू, बट हाँ उस टाइम के हिसाब से जो करा है वो अपन को हेल्प करा है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग, बिल्कुल राइटिंग was important. Every instruction, plan, policy decision, agreement, investigation had to be clearly written up. तो इसीलिए अपन को जितना मैंने बताया ना आगे जाते जाएंगे क्लियर पता रहेगा। अगर इधर मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया 700, है ना, यहाँ मैंने बना दिया 1600, यहाँ बना दिया मैंने 1947, यहाँ बना दिया मैंने 2023, तो इसके डेट वाइज मिलना मुश्किल है, मंथ वाइज भी मुश्किल है, बट हाँ 700 से 800 में बता सकता हूँ कि हाँ चलो इस फेज में ये हो रहा होगा, ये ऐसा करके। आई एम नॉट सीइंग, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है बट थोड़ा मुश्किल है। 1600 में ठीक है, 1947 में हाँ आपको काफी कुछ पता रहेगा, बट 2023 में तो डेट वाइज आपको पता है, न्यूज़पेपर्स हर चीज का ई वर्जन है, जस्ट रैंडमली राइट जुलाई 2023, बोलो डेट बोलो, एनी डेट यू कैन थिंक, लेट्स से 10 जुलाई, you'll गूगल दैट, यू विल फाइंड दैट। तो ऐसे करके तो जितना आगे जाते जाएंगे ना अपन को हिस्ट्री रीराइट करना उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। बट हाँ स्टिल ब्रिटिशर्स के टाइम पे यही बता रहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड, वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करते थे, है ना, क्योंकि उसको बाद में लोग स्टडी भी करते थे और डिबेट भी करते थे। एंड दूसरा ये है कि कंट्रोल रखना है ना अपन को, आप किसी पे कंट्रोल कर रहे हो तो आपको उसके बारे में हर चीज पता होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी का पीजी या लाइक किसी, अगर आप होटल में भी जाते हैं, है ना, तो चेक इन करवाता है वो आपसे, तो डिटेल्स मांगता है आपसे, है ना। और अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर रजिस्टर अगर पुलिस वाले करते हैं तो वो भी हर चीज में नोट डाउन करते हैं। तो वही जितना ज्यादा डिटेल्स रहेगी उतना स्टडी कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोसीजर produced not procedure, this conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports। ठीक है, तो इसी को ये एक अपने पास एक रिकॉर्ड है हिस्ट्री पता करने का। The British also felt that all the important documents and the letters needed to be carefully preserved। बिल्कुल आपको प्रिजर्व भी करना रहता है, तो अगर प्रिजर्व नहीं हुआ था तो अपन को आज तक पता नहीं पड़ता कि कैसा क्या है। सो दे सेट अप द रिकॉर्ड्स रूम। रिकॉर्ड रूम मतलब कि एक लाइब्रेरी टाइप से आप बता सकते हो कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, आपकी स्कूल की भी लाइब्रेरी होगा उसको आप कर लो, या मे बी स्टाफ रूम में आप देखना तो सारी चीजें रहती है, या मे बी एडमिन रूम या एडमिनिस्ट्रेटिव रूम रहता है, वहां पे आपके हर स्टूडेंट की डिटेल्स रहती है, तो एक रूम में हर चीज को रखिए। द विलेज तहसीलदार ऑफिस और द कलेक्ट्रेट, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts had their all record rooms। ठीक है, कभी भी आप जाइए ना तो कई जैसे सरकारी ऑफिस में या मे बी बैंक वैंक में भी जाएंगे तो आप पूछना कभी कि मेरे को रिकॉर्ड रूम देखना है, ऐसे आपके दिखाएंगे तो जनरली नहीं, बट आप पूछना, वो बोलेंगे हाँ होगा, तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसा होता है रिकॉर्ड रूम। आपके घर में भी होगा कि कहीं आपके फादर ने या मदर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह प्रिजर्व करके रखा होगा। आज की डेट में तो डिजी लॉकर भी आता है, डिजी लॉकर, हर चीज को इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये आज के जमाने की चीज है, उस जमाने पे वो लोग ऐसा करते थे। म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स और म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, letters and memos that moved from one branch to the uh, administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। बिल्कुल मैंने यही बोला है कि अभी भी ब्रिटिशर्स के ज़माने की रिकॉर्ड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हम देख सकते हैं, इवन इन इंडिया एज वेल, और काफ़ी रिकॉर्ड्स उनके लंदन में भी है। यू कैन ऑल्सो स्टडी द notes and the reports that the district officials prepared, or the instructions and the directives that were sent by the officials at the top
टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। वही है कि आपको हर चीज पता है। नेशनल आर्काइव्स ये अपने दिल्ली में है, तो इस जगह पे सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और सीआईडी या सीबीआई की जो रिपोर्ट्स है, जो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जो फाइल्स है जो सरकार जो पब्लिक को दिखाना चाहती है वो नेशनल आर्काइव्स में भेज देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है इम्पोर्टेंट वाले पब्लिक के लिए। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, अच्छा 19th सेंचुरी अगर कभी बोले तो 19th क्या लिखा है, 1900 से 1999 है ना, बट नहीं, अगर ये बोल रहे हैं 19th सेंचुरी तो इसका एक्चुअली में मतलब होता है 1800 से 1899। ठीक है, कभी भी अगर वैसे बोले 20th सेंचुरी अगर मैं बोलूं तो 20th सेंचुरी हो जाएगा 19, 21st सेंचुरी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं 16th सेंचुरी तो 15 हो जाएगा, तो ऐसे। तो ये बोल रहे हैं इन द अर्ली इयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, तो अर्ली इयर्स कितना 1800 से मान लो 1810 या 25 मान लो, अर्ली इयर्स कितना ही मान लो है ना, 1899 तो एंड के इयर्स हो जाएंगे है ना। ठीक है, दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस। कैलीग्राफिस, इसको वर्ड को गूगल कर लेना है ना, समझना कि क्या है ये। बिल्कुल स्टाइलिश वे में उस चीज को लिखते हैं, ऐसा राइटिंग का एक फॉर्म रहता है और जो लोग करते हैं उनको कैलीग्राफिस बोलते हैं, है ना, ब्यूटीफुल राइटिंग। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, अब समझना इसको, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 1850, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as the proceedings of each गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इससे एक फैक्ट अपन को पता पड़ रहा है कि अपन को 1850 के अराउंड में प्रिंटिंग एस्टैब्लिश हो गई थी। तो अगर उसके पहले इंडिया में प्रिंटिंग उतनी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। तो अपन ने रिकॉर्ड्स देख लिया, फिर ये देख लिया, और ऐसा द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम अ कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे यानी कि किसी चीज को चेक करना, उसको स्टडी करना, बार बार उसको देखना, ऐसा। द ब्रिटिश बिलीव दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिकॉज आई एम सॉरी बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। बिल्कुल, तो अगर हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो है अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, जामा मस्जिद, और मे बी यू कैन से कुतुब मीनार, है ना, महाबलीपुरम, ऐसा। तो इन मेजर जो मॉन्यूमेंट्स है जो अपने पुराने, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजस्थान के किले, इन सबको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ऐसे ही बहुत सारे सर्वे बने थे, कार्टोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यू कैन से स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एसएसआई, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे। तो सर्वेस का काम काफी वास्ट रहता है, उसको इन डेप्थ करना है। ZSI, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, ये तो आज भी है जोलॉजिकल सर्वे, का सभी है ऐसे करके। By the early 19th century, detailed surveys were being carrying out to map the entire country। ठीक है, अपन को बिल्कुल वही स्टडीज ही कर रहे हैं, सर्वे यानी कि स्टडीज कर रहे हैं लोग, इन डेप्थ स्टडीज, है ना। द इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड, है ना, ये कौन करता था, कलेक्टर। आज की डेट में भी आपने सुना होगा कलेक्टर। ठीक है, तो ये हेड हुआ करता था, तो इसीलिए आज भी डीएम का नाम कलेक्टर, डीएम अपन कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, बिल्कुल,
टोपोग्राफी का मतलब है सॉइल, अपने मिट्टी, सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा फोना, फ्लोरा यानी कि पौधे पेड़, फोना यानी कि अपना पक्षी जानवर, उस तरह की चीज, हर चीज को वो लोग स्टडी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, खेती, गेहूं चावल वो सारी चीजें, ऑल द फैक्ट्स एज सीन नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। समझो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी का क्या मतलब होगा, तो 1890 से लेके 1899 तक मैं कंसिडर कर लेता हूँ, है ना। तो ये देखो मतलब अगेन ये सारी चीजें जो है ना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, वही डेट्स नहीं याद रखनी, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द टाइम फ्रेम, किस तरीके से चीजें हो रही है ना। तो अपन को बस पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी और मे बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी क्या बोल रहा है, इस तरीके से। तो डोंट फोकस ऑन रिमेम्बरिंग द डेट्स, डेट्स का कोई काम नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है, कोई काम नहीं है, बट स्टिल इस तरीके से हिस्ट्री अगर पढ़ने जाओगे इट बिकम्स वेरी टफ, और फिर वही यू विल गेट बोर्ड एंड स्टक, फिर वही अपन को लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा बोरिंग है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। सेंसस का ये मतलब होता है जनगणना, जन है ना। जनगणना का ये मतलब होता है कि पूरे देश की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना। और एक अच्छी खबर ये है 2027 में सेंसस होने वाला है अपने इंडिया में। सो लास्ट वीक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नोटिफिकेशन जारी करा था, तो वेरी सून सेंसस होएंगे। सेंसस के अंदर पूरे अपने इंडिया के अंदर देश की पूरी पॉपुलेशन कितनी है उस चीज को ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1871 में, है ना। 1877 1871 और 1881 में, ये हाफ हुआ था और फुल 1880। तो 1881 से हर 10 साल में अपने देश में सेंसस हो रहे हैं। तो लास्ट सेंसस अपने उसमें हुआ था 2011 में, यानी कि 2011 में अपने देश की पूरी पॉपुलेशन को अपन ने कैलकुलेट किया था। बट फिर अगला वाज ड्यू ऑन 2021, बट इस समय तो कोविड-19 था, तो उसको डिले करके अब वो हो रहा है 2027 में, ऐसा। These prepared डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस। तो यही एक, और ये भी तो एक सर्वे ही है, हर चीज को डिटेल करना, है ना। नोटिंग डाउन द कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। देयर वर बोटानिकल सर्वे, जोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, चलिए। व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डज नॉट टेल। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स we can get to know a lot, but we must first remember that these are official records। ऑफिशियल यानी कि जो गवर्नमेंट निकालती है। आप और मैं अगर कुछ चीज निकाल दे उसको पब्लिश करते हैं, उसको ऑफिशियल नहीं बोला जाएगा। ऑफिशियल वो रहेगा जो सरकार निकालती है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट वाज। तो ये फिगर में भी बता रहे हैं कि कैसे जेम्स प्रिंसेप हुआ करते थे, ब्रिटिश के ही, ये मैपिंग और सर्वे के लिए बंगाल के अंदर कर रहे हैं। तो ये अच्छी फोटो है, इसको देख सकते हैं, है ना। They were interested in and they wish to preserve for the posterity। प्रिजर्व करने का उनका मेन गोल हुआ करता था। These records do not always help us to understand what other people in the country felt and what ले बिहाइंड देयर एक्शंस। तो बाकी लोगों के बारे में, इंडियंस की तो कोई उस समय पूछता ही नहीं था। वही आई एम, अभी अपन डेप्थ में नहीं जा रहे। इंडियंस की हालत बहुत बुरा हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो बस वो यही बोल रहा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है ब्रिटिशर्स की स्टैंड पॉइंट अपन को शो कर रहा है, नॉट द पूरे टाइम की। ठीक है। फॉर व्हाट वी नीड टू लुक एल्सवेयर।
when we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries. तो other records क्या हो सकते हैं? Official तो हमारे पास चलो ठीक है, प्रिजर्व कर रखा है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी, और जो कि करना भी चाहिए ऑफिशियली रिकॉर्ड्स को स्टोर करना. और क्या हो सकती है? डायरीज ऑफ पीपल, ये इनफॉर्मल या लोकल हो सकते हैं. अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स यानी कि कोई तीरथ पे गया होगा वैसे. ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, पर्सनालिटीज, बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स. तो काफी अदर इनफॉर्मल भी चीजें थी. ठीक है. As printing spreaded, newspapers were published and issues and issues were debated in the public. Okay, and issues were debated in the public. हाँ बिल्कुल, जैसे न्यूज़पेपर सबके पास गया, लोगों को पता पड़ने लग गया कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ बुरा कर रहे हैं. उसके पहले तक लोगों को पता ही नहीं था. कैसे न्यूज़पेपर जब है ही नहीं, किसको कैसे पता पड़ेगा? आज तो इतना इंटरनेट के ज़माने में कोई कहीं से भी कुछ कर सकता है. टुडे आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर इन माय होम, यू आर स्टडीइंग इन एट योर घर पे या कहीं पे भी बाहर पे एट योर डेस्कटॉप, माइल्स एंड किलोमीटर्स अवे. तो आज की डेट में है. बट इफ यही चीज मैं बोल रहा हूँ, गो बैक टू द हिस्ट्री. उस जमाने के हिसाब से समझो कि उस समय क्या होता था. उस समय ये सारी मीन्स ऑफ चीजें नहीं थी. कोई आके बता दे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वही इंफॉर्मेशन को कंसिडर किया जाता था, उसी को सच मानते थे. और धीरे धीरे करके जब बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लग गए, तब लोगों को पता पड़ने लगे कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है. वाइज एजुकेशन वॉज नॉट वेरी गुड. बहुत ज्यादा अनएजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता था. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas. Poets, novelists wrote to express their feeling. काफी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे अपन को आने वाले टाइम पे. बट हाँ, these are the sources of the history. ठीक है. All these sources, however, were produced by those who were literate. जी बिल्कुल. बहुत कम लोग थे, लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड एनी बिसेंट, काफी सारे लोग के नाम है. बट अगर ओवरऑल प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के उससे देखा जाए तो बहुत कम लोग थे. फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स. बिल्कुल, ये तो ये सारी जो चीजें उन्होंने लिखी है वो एजुकेटेड लोगों ने लिखी है. बट हमको ये चीज नहीं पता पड़ेगी कि उस समय जो अनएजुकेटेड लोग थे और जो ट्राइबल्स लोग थे या पीजेंट्स थे, किसान थे, वर्कर्स थे, पुअर लोग थे, उनकी इस तरीके से स्थिति होती थी. उनकी मुंह जुबानी चीजें हमको नहीं पता है. Getting to know the lives is a more difficult task. I hope you get this. Yet this can be done if we make a bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. वही चैप्टर एंड हो रहा है और आने वाले टाइम पे आगे वाले चैप्टर्स में अपन को ये चीज पता पड़ेगी. ठीक है. So we'll discuss all these things in a separate video or maybe in a shorts. So chapter 1 is over. We'll start for the chapter number 2 from the second class. ठीक है. I hope this chapter was covered in depth and in detail. और कुछ भी अगर लगे, you can ask me in the comment section. And there is nothing I'll say rush that you need to subscribe to the channel. आराम से जब लग रहा है तब कर लेना सब्सक्राइब. चैप्टर्स कंटिन्यू चलते रहेंगे. And until then, I hope you are healthy, you are safe, and keep yourself stay fit and stay fine. See you in the next class. We'll continue soon. Thank you very much.